Hello and welcome to the Blueprint Explosive Exclusive. We bring you this special edition from Vijay Chowk. Parliament is in session, both houses. The session is currently underway, but what is not died down is the heat of the debate following Operation Sindoor. Now, we've seen several political parties come out and give their reactions to the various statements that have come in from the government as far as the name Operation Sindoor itself is concerned. Today, we've now seen former Chief Minister of Maharashtra and senior Congress leader Prithviraj Chavan come out and object to the name that has been given to Operation Mahadev, in which the 3 terrorists were gunned down. He says that this is a government that is only focusing on symbols of one particular religion and is trying to communalize various such issues. Let's take a look at the exact statements that have been made by the former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan. देखिए, ऑपरेशन के नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है. दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है. Another India bloc leader, Jaya Bachchan, has questioned the logic behind the name Operation Sindoor, saying that the Sindoor was wiped away of several Indian women in the unfortunate attack that took place in Pahalgam. मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं. ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं. Meanwhile, the BJP has accused the India bloc, and particularly the Congress party, for insulting Sanatan, saying that this was very clearly an attack on Pakistan to really avenge what had been done as far as the terror strike in India is concerned. Take a look at these reactions coming in from the BJP. अब ऑपरेशन महादेव का विरोध करने के बाद कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन महादेव के नाम पर भी आपत्ति कर रही है, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर को भी कॉम्युनल कहा था उदित राज ने, ऑपरेशन महादेव को भी कॉम्युनल कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान. मतलब सेना का अपमान भी कर रहे हैं कि सेना जो है वो पोलराइज करवाती है नाम रखकर. मुझे लगता है कि नाम देने से बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा लगता है, ऐसा उनका कुछ ओपिनियन है. उसमें बीजेपी ने फायदे के लिए नहीं किया है, देश के फायदे के लिए किया है. देश हमारा खंभीर है, इसके लिए उन्होंने किया है. इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार ने हमारे जवानों के सहयोग से उनका बदला ले लिया है. कांग्रेस पार्टी एंड इट्स लीडर्स शुड अंडरस्टैंड दैट ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर इज अ फाइट फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान एंड द टेररिस्ट दे ब्रीड, एंड देयरफॉर killing of terrorists is a victory for India. Times Now, in fact, confronted Prithviraj Chavan, but he ducked our questions and tried to evade them. Take a look at this. You also happens to be questioning the names of various operations. अभी बाद में करूँगा. So your say onto this. I'll talk to the press in my office. But don't you think, sir, it is To the press in my office. Please stop it now. So will it be on record speaking, sir? Of course. Okay. Thank you very much, sir. So that's Prithviraj. Each person individually. Correct, sir. But the question only remains that why Operation are somewhat quenching the sentiments. I'll answer that question clearly. My own view, personal view. It was your personal view, but don't you think it is? Answer that, please. Okay. Thank you. Let's take this across to our guest now. Joining us is Janardhan Singh Sigriwal, Lok Sabha Member of Parliament. We have Krishna Prasad Teneti, who's a Lok Sabha Member of Parliament from the TDP. Joining me also is Mr. Robert Bruce C, Lok Sabha MP from the Congress Party. Amra Ram is a Lok Sabha MP from the CPIM. Let me start with you first. Robert Bruce, the BJP is saying that there is an attempt by the Congress Party to raise questions about everything, including operations of the Indian Army, and attempt to politicize them. Was this comment of Mr. Prithviraj Chavan that only, Hindu symbols are being used or perpetuated by BJP a fair comment when it is a genuine operation of the army in which terrorists have been killed? Your response to the BJP? We raised, and our leader Rahulji and India Alliance leaders raised several questions before Rajya Sabha as well as Lok Sabha. None of the questions were answered by
treasury bench so far. So we took 16 hours discussion. Out of 16 hours discussion, none of the questions raised by Indian group leaders were answered so far. So the Operation Sindoor, But can you really say that? PM said that there is no pressure. The allegation of opposition parties was that the Prime Minister has taken this under pressure from US, this decision, and that, there was threat of tariff. The Prime Minister said there is no such threat. no, I will tell you one thing. Rahul Gandhi openly asked, will you please deny the 29 times US presidents announced that ceasefire was announced by me. Rahul Gandhi openly asked a question. Are you able to tell his statement is false? Okay. I want you to answer that. Krishna Prasad, did Rahul Gandhi's question, was it answered by Prime Minister yesterday or not? The Congress says it was not answered. Your response. The question is, we are diverting ourselves from the main issue. The main issue is basically what are we fighting against? So are we hitting the target or not? Here is a situation where Pak-sponsored international terrorists have entered India on the soil of India. They attacked Indians and killed Indians. That is the issue. And what is action you have taken? In all the 16-hour discussions, what honorable members have decided or discussed is when you look at all the Pak-sponsored terrorist attacks in India, when you see from 2004 to 2014, as many as 11 attacks took place and 600 Indians and some foreign nationals were also killed. In each of these 11 cases, was there any surgical strike? Was there any operation? You need not call it Sindoor, you can call it by any name you want. Was there any operation? No, nothing. They claim there were some covert operations, we didn't speak about it. That is their claim. So again it is like this, somebody in the floor, in the house also they raised from the Congress. They said, how do you know that these 4 people are from Pakistan? Such questions were also raised. So that is not the issue. Issue is basically, are you reacting when your nationals are killed on your soil or not? They are coming all the way into your country and killing your own people. No, and I must ask a more fundamental question. Amra Ramji, simple सवाल है. जब आर्मी इस तरह के ऑपरेशंस का नाम रखती है, तो आर्मी कई चीजों का ध्यान रखती है. अब ये जो ऑपरेशन किया गया था, कंडक्ट किया गया था, उस जनरल एरिया का नेम ही महादेव है. इसका भगवान से या किसी तरह से धर्म से किसी तरह का ताल्लुक ही नहीं है. ये आर्मी का कहना है. आर्मी पर तो विश्वास करेंगे. आर्मी के जितने भी तीनों हेड हैं, उनकी मीटिंग हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने ली है ना, और उनसे एक्सेप्ट कराया है. आज तक सिंदूर और अभी महादेव और सिंदूर महिलाओं में बांटने का आह्वान कर दिया था. वो तो लोगों ने कहा कि हमारी औरत को सिंदूर हम लगाएंगे. तुम भारतीय जनता पार्टी वाले कौन होते हैं सिंदूर लगाने वाले? जब जाकर के बैक हुए हैं, वरना तो लेके चले गए थे घर घर. इसलिए केवल और केवल ऐसे टेररिस्ट अटैक में भी वो सांप्रदायिकता ढूंढते हैं. अभी देखा नहीं पार्लियामेंट में कल कह रहे थे वो 26 की जब लिस्ट पढ़ी जा रही थी. मैं ये आपका सवाल पूछूंगा, राजनीतिकरण का आपका सवाल मैं बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे पूछूंगा, लेकिन सिंपल सवाल ये है कि जब ऐसे वक्त पे जब इतने सारे भारतीय नागरिकों को मार गिराया था केवल इसलिए उनके धार्मिक धर्म पूछा गया था और उनको मारा गया था, तो ऐसे में क्या सिंदूर ऑपरेशन, उससे क्या आपत्ति हो सकती है? और इस अगर महादेव उस एरिया का नाम है तो क्या आपत्ति हो सकती है आपको? आपत्ति नहीं की. पृथ्वीराज चौहान जी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. पूरा प्रतिपक्ष ने कहा सरकार के साथ है. इस टेररिस्ट अटैक में जो भी सरकार कार्रवाई करेगी, पूरा प्रतिपक्ष और पूरा देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं. वो तो प्रधानमंत्री जी हैं जो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं. बट सर ऐसे तो बहुत सारे वॉर क्राई है. मराठा या जाट रेजिमेंट, इन सब का वॉर क्राई क्या होता है? ये सब धर्म के या किसी भगवान के या भगवती या देवी के नाम पे याद करें. ये देश की संसद है जो देश के संविधान से इनका भी राजनीतिकरण आप करेंगे? नहीं, राजनीतिकरण तो कर दिया आज से तो नहीं है ये तो आजादी से पहले के वॉर क्राइज इन सब रेजिमेंट्स के कई सारे. नहीं, कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें धार्मिक
नाम लिया गया। आप बता दीजिए मुझे। सर रेजिमेंट के वॉर क्राई कह रहा हूं मैं आपको। नहीं, रेजिमेंट वो अपना नारा लगाते हैं, वो जोश के लिए है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। हर रेजिमेंट का अपना वॉर क्राई है। Let me bring in the BJP. Let me bring in the BJP member of parliament. सर, ये आरोप लगाया जा रहा है आपने सिंदूर बांटा, राजनीतिकरण आपने किया और इस वजह से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। क्या जवाब देंगे आप आमराराम जी को? देखिए, कहीं कोई राजनीति नहीं, इसमें कार्रवाई की बात। और कभी भी जो हमें लगता है विपक्ष के लोग, खास करके कांग्रेस के हमारे भाई, लाश पर भी राजनीति करते हैं। जहां इतना बड़ा पहलगांव में घटना हुई, जहां हमारे निर्दोष से ऐसे भाइयों और बहनों को वहां वो टेररिज्म में और टेरर ने मार गिराया और उसके बाद ही राजनीति कर रहे हैं इसके बाद भी। और ऑपरेशन सिंदूर तो हमें लगता है कि इसमें गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर इस भारत के मां के और बहनों के वो माथे का एक चंदन सिर्फ नहीं है, उनका सुहाग है, उनका सौंदर्य का प्रतीक है। और मां के सिंदूर तो हमें, चाहे मां जगत जननी जगदम्बा हो, मां अंबे हो, मां काली हो, वीरों के वीर महावीर हो, वह सिंदूर तो हम अर्पित करते रहते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर क्या आपत्ति हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर पर हमें लगता है कि आपत्ति कतई नहीं होनी चाहिए। और वह बात तो हमें लगता है कि वहां से आई कि एक बहन जिसके शौहर के माने जिसके पति की हत्या कर दिया था और उसको आतंकवादी ने कहा था कि जाकर के आप मोदी जी को बता देना। और उस पर अगर सिंदूर अगर नाम अगर ऑपरेशन हो गया तो इस पर क्या आपत्ति क्या हो सकती है? और मैं तो कहता हूं कि जब तक मां का सिंदूर रहेगा, जब तक बाबा भोले का त्रिशूल रहेगा, अगर भारत पर कोई आतंकी और आतंक का अगर मंसूबा भी बनाएगा तो उसका चकनाचूर हो जाएगा, उसका धूल में मिट जाएगा। यह भारत नया भारत है, यह मोदी जी का भारत है। यहाँ आज भारत यहाँ पहुंच गया है। भारत नहीं, नया भारत। वो सेना की जिस तरह से दुर्गति करते हैं, इस देश में पहला प्रधानमंत्री है जो फौज को अग्निवीर बनाने का काम किया है। सोफिया कुरैशी, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल करके आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का मंत्री आतंकवादियों की बहन कहता है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन आज भी वो मंत्री बना बैठा है। प्रवक्ता है, बट ये मध्य प्रदेश मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये सवाल है। देखिए, आप कहां से कहां चले गए। अभी आप बोल रहे थे कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, और आप चले गए मध्य प्रदेश चले गए। इतना जल्दी यहाँ दिल्ली के या विजय चौक से छलांग लगा लिया। वह तो कार्रवाई की बात है, पार्टी के लेवल पर है, सरकार के वहाँ का है, सरकार के लेवल पर वह कार्रवाई हमारे यहाँ कोई गलत होगा बचने वाला नहीं है। चाहे अग्निवीर किसने दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकारें रही है, कार्रवाई होगी। अग्निवीर नहीं बनाया, केवल ये अग्निवीर बनाया जो शेखावाटी से जहाँ से मैं आता हूँ, हर गाँव में शहीद की मूर्ति लगी हुई है, चाहे कारगिल हो, येकर हो, बासठ हो। अग्निवीर के बारे में हमें करना होगा आपको। अग्निवीर का एक बहुत बड़ा नहीं, किसने मांग की थी अग्निवीर के? किसने मांग की थी? उसके लक्ष्य है अग्निवीर के। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग एट द मोमेंट। इनफैक्ट सर कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, दिस बिग न्यूज कमिंग इन। ट्रंप हैज अनाउंस्ड टैरिफ ऑन इंडिया। इंडिया विल प्ले टैरिफ ऑफ 25%. Donald Trump has said the tariffs by India are too high. Trump announces tariff plus penalty. It's a massive trade deficit with India that has been cited. He has gone on to say that there will be politics over, clearly over here in India, we've seen politics over the US tariff. SP leader IP Singh has taken a swipe at Prime Minister Modi, saying Modi these dear friend jibe is the statement that is coming in. विपक्ष ने ऑलरेडी निशाना साधना शुरू किया है कि इतने अच्छे और घनिष्ठ संबंधों के बावजूद 25% की हाई टैरिफ लग रही है। जनार्दन जी, पहले इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके। जनार्दन जी जवाब दीजिए। देखिए, हमें लगता है कि यह सारी बातें देश के प्रधानमंत्री की नजर में जब आएगी तो उसका माकूल तरीके से जवाब भी होगा और माकूल तरीका से उसका समाधान भी होगा। यह मोदी है तो मुमकिन है। मोदी पर देश के 144 करोड़ लोगों का विश्वास है। भले कांग्रेस और विपक्ष को न विश्वास हो, लेकिन 144 करोड़ लोग विश्वास से ओतप्रोत हैं और उनके मन में यह विश्वास है कि मोदी है तो सब संभव है, मोदी है तो सब मुमकिन है, यह विश्वास है। ऐसा है, 140 करोड़ की बात छोड़िए, 400 का नारा किया था, 240 में है। और मोदी जी कल जवाब दे रहे थे, क्यों नहीं बताया उन्होंने? मतलब पाकिस्तान उनके सामने सिलेंडर हो गया था, उन्होंने सीज फायर किया।
तो सबसे पहले 140 करोड़ लोग जनता को बताने की बजाय ट्रंप को बताया। नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये कि किसी के दबाव में आके नहीं किया। ट्रंप ने घोषणा करने के बाद 4 घंटे बाद में सीज फायर हुआ है। I think you started Okay, talking. let me I'm coming to you one by one. I just want a quick update. एक दफे नहीं, दर्जनों बार कहा। आपके पास आ रहा है। और सबसे पहले what happens from here on? This 25% tariff, is this for a limited period of time? Is this something that's going to continue? And what are the implications and what are the options that India can exercise at a time like this?